घोड़ा दीजे, हाथी दीजे और दीजे पालकी, और दीजे पालकी, और दीजे पालकी। हे आज तो आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आज तो आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो। आज तो आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हे नंद घेरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। चांदी की सांकल है सोने की पालकी, सोने की पालकी, सोने की पालकी, चांदी की सांकल है ओ, चांदी की सांकल है सोने की पालकी, सोने की पालकी, सोने की पालकी। है जशोमती झूलावे नवरतन गोपाल की, यशोमती झूलावे नवरतन गोपाल की। है आज तो आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, है नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, आज तो आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घेरा नंद भयो।
अरे बाबा जी बाबा जी गिरवी को कन्या भाई यशोदा को लाल अरे बाबा जी को लड्डू पहना बुद्ध देखो लापसी वगैरह नंद भयो जय कन्हैया लाल की પરંતુ પ્રથમ નજરે જ ભાગ્યેશ બાવાશ્રી હૃદયમાં કોતરાઈ ગયા તમે ન બોલો તો કાંઈ નહીં ભાગ્યેશ બાવાશ્રી ન બોલો તો કાંઈ નહીં નજર તમારી બસ છે ન બોલો તો કાંઈ નહીં ભાગ્યેશ બાવાશ્રી તમારી નજર બસ છે આંખોથી આંખો મળે આંખોથી આંખો મળે તો હૈયાને હૈયું બસ છે વલ્લભાધીશ કી જય चाल ब्रजभान सोता साजे को आयो देख फूल रहे फूल और सखी सब गई लड़ती मोहि मिली कालिंद कोल फूल ब्रजभान पठई उन्हें बोलना तुमको आतुर गति आजी हो दो
बेगी चलो चिन विलंब करो चिन वे सब चुन चुन लेगी तो चल ब्रजभान बरन विविध भात के फूल कुसुम शोभा दे तजी स्वारत हो अपनो यारी भलो मना मन तुम्हारे हेत चल ब्रजभान कहाँ तेरो नाम कौन की बेटी अबलो हम देखी नहीं बान किनी भले भले तुम आई काज परायो करत कृपाल चल ब्रजभान रास दूत कांति कृपा निधि दिखियत है तुम परम उदार या छवि के पटतर को नाई कोटि का चंदा डारो बार चले ब्रजभान सकी श्याम सुंदर सिंह यमुने महाराणी जी की श्री गोवर्धन नाथ की जय हो। હવે આપણા ક્રમ પ્રમાણે પરસ્પર બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ ભગવત સ્મરણ કરી દઈશું, પ્રેમથી બોલીશું, જોરથી બોલીશું અને એક સાથે બોલીશું. પ્રેમ સે બોલો. ચા બરોબર પીવાય લાગતી નથી. प्रेम से बोलो. अरे जोर से बोलो, एक साथ मिलके बोलो. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. आज मारे नंदगाम विषय तो कहूं छे, पण नंदगामનું આકર્ષણ કેટલું બધું છે એની એક વાત પણ કહેવી છે. અને એ જે નંદગામ માટેની આરતી એક વ્રજભક્તે ખૂબ સુંદર રીતે રજૂ કરી છે. અને એ આરતીના દર્શન આપણા અષ્ટસખા પૈકી પરમાનંદ દાસજીએ એનું ગાન કર્યું છે. પરમાનંદ દાસજી તોક સખા ચંદ્રભાગા સખીનું પ્રાગટ્ય છે. અને મંગળાના દર્શનના જે ગુસાઈજીએ અષ્ટછાપમાં સેવા સોંપી છે એ પરમાનંદ દાસજીને સોંપી છે. અને ત્યાં શ્રીનાથજીમાં શ્રી નવનીત પ્રિયજીનો ભાવ આપણે આઠ સમાના દર્શનમાં ઠાકોરજીની 8 જુદી જુદી લીલાઓનું સ્મરણ કરીએ છીએ, તો આપણે નવનીત પ્રિયજીનો ભાવ ત્યાં કરવાનો છે. તો હવે એક વ્રજના ગોપી છે, એ નંદગામમાં રહેતા નથી, પણ એમને બઠેનમાં રહે છે. આપણે આગળ જેમ જેમ યાત્રા કરીશું એમ બડી બઠેન, છોટી બેઠેન બધા ગામો આવશે. તો બઠેનમાં એ રહે છે, પણ એને બઠેન ગમતું નથી. એનું કારણ શું કે ત્યાં નંદકુમાર વસતા નથી. તો એ જે એની ભાવના છે એનું કીર્તન પરમાનંદ દાસજીએ ગાયું છે. એના આપણે પેલા શબ્દોને
જોઈ લઈએ. પછી એ કીર્તનનું ગાન પણ આપણે પરમાનંદદાસજીનું સ્મરણ કરીને કરીશું. તો કીર્તનના શબ્દો છે. હવે આ વ્રજભાષા જે હોય એ વ્રજભાષા સમજવી બહુ કઠિન હોય છે, છતાં આપણે સરળતાથી પહેલાં જેટલું સમજાય એટલું સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. તો આ જે સખી છે એ પોતાની સખીને કહે છે, પોતાની સખીને કહે છે. શું કહે છે? ચલરી સખી, એ સખી તું ચાલ લે. શું કરવું છે? નંદગામ જઈ બસીએ. આપણે અહીંયાથી નંદગામ વસી જઈએ. અહીંયા સખી શબ્દ છે એ પોતાની અંતરંગ સખીને પણ એ કહેતી હોય એવું બને. અને બીજું અંતઃકરણ એનું જે છે, એનું જે અંતઃકરણનું સ્વરૂપ છે એની સાથે બી કદાચ જેમ આપણે બી ઘણી વખત મનમાં ને મનમાં વાત કરતા હોઈએ છીએ ને, એમ મનોમન પણ વાત કરતા હોય એવું શક્ય છે કે આપણે એક કામ કરીએ, નંદગામ જઈ બસીએ. બસીએ એટલે ત્યાં જ સ્થિર થઈએ. એવું નહીં કે 2-3 દિવસ કે 2-3 અઠવાડિયા જઈને પાછા આવી ગયા. બસીએ, ત્યાં જઈને આપણે નંદગામમાં વાસ કરીએ. એનું કારણ ખીરક ખેલત વ્રજ ચંદસો હસીએ. નંદ બાવાની 9 લાખ ગાયો રહેતી હોય એ જગ્યાને ખીરક કહેવામાં આવે. તો એ ખીરકમાં વ્રજના ચંદ લાલન ખેલતા હોય તો ત્યાં જઈને આપણે એની સામે હસીએ. પણ એ ક્યારે બને? જો આપણે નંદગામમાં જઈને વસીએ તો. પછી આગળ કે છે, એની વાત કરે છે કે બઠેનમાં આપણે રહીએ છીએ, એટલે બસે બૈઠનમાં રહીએ છીએ. ત્યાં બધું સુખ છે, કોઈ દુઃખ નથી. બસે બૈઠન સબે સુખ માહી, બધું સુખ છે, પણ એક કઠિન દુઃખ છે. બધા જ સુખોમાં એક જ દુઃખ છે સખી. કયું દુઃખ છે? દૂર કનાઈ. કાનો આપણા કરતા દૂર છે. આમ તો બધું બહુ સુખ છે, 5 સ્ટાર છે, પણ કાનો ત્યાં મારો મને મળતો નથી. આ મોટું દુઃખ છે. માટે આપણે નંદગામમાં જઈને વસીએ. હવે એ કાનાની બધી લીલાઓનું સ્મરણ કરે છે. માખણ ચોરે, આવીને માખણ એ ચોરી જાય. દૂર દૂર દેખો, એટલે પેલા ચોરીને ભાગ્યો હોય તો દૂર 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 સુધી એને આપણે દોડતો જોયા જ કરીએ. તો આ રીતે જીવન જન્મ સુફલ કરી લેહો. તો લાલો આવે, માખણ ચોરે, એ ભાગે, અને આપણે દૂર 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 જોયા જ કરીએ. અને આ રીતે આપણું જે જીવન છે એ જીવનને, નહીં અવાજ આવશે બેટા પંખાનો, હા, એ આપણું જે જીવન છે એને આપણે સફળ કરી દઈએ. જો આ સફળ જીવનની વાત આવી, મને સમજાતું નથી. કોઈ અહીંયા બેસું છું ત્યારે આપ બધા વૈષ્ણવોના હૃદયમાં મહાપ્રભુજી મને શું પ્રેરે છે એ મને કંઈ સમજાતું નથી. તો અત્યારે એકદમ વિચાર આવ્યો કે આ જન્મ સફળની વાત કરીને તો મને હરિરાયજી યાદ આવ્યા. હરિરાયજી મહાપ્રભુજીએ લગભગ 201 જેટલા ગ્રંથો લખ્યા છે, અને એમાં એક ગ્રંથ ખૂબ સુંદર છે. એનું નામ છે જન્મ વૈફલ્ય નિરૂપણાષ્ટકમ. 8 શ્લોકો એમાં છે. जय श्री कृष्णा, और जोर से बोलिए जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन बल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरणे कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री हराई चरणे कमलेभ्यो नमः, श्री गुरुवे नमः। चिंतान संतान हंतारो यत् पादाम्बुज रेणवय, स्वयं नाम तान निजाचार्यान प्रणमामि मुहुर्मुहुः। वंदे राधिका देवी किशोरी माधव स्वामिनी, श्यामा गजगामिनी चैव त्रिभुवन मोहन मोहन। थोड़ी देर हम सब नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद धाम महिमा हम सब श्रवण करेंगे।
मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे तो आधार, मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे तो आधार। चरणार बिंद, वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद, वल्लभ के चरणार बिंद, विठ्ठल के चरणार बिंद, चरणार बिंद, विठ्ठल के चरणार बिंद, मेरे मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे तो आधार है श्री वल्लभ के चरणार बिंद, वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद, वल्लभ के चरणार बिंद, विठ्ठल के चरणार बिंद। श्री पूज्य जय जय श्री के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए आप सभी वैष्णवन के चरणों में बार बार नमन। देखो, हमें कछु आवे तो है नहीं, पर जय जय की आज्ञा हुई तो उन्हीं की कृपा से हम कछु बोलने को सामर्थ्य कर रहे हैं, क्योंकि जय जय की कृपा से ही जो व्यक्ति श्री सूरदास जी का भाव है, चरण कमल वंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र दराए। जय जय की कृपा से जो अंधा है उसको दिखने लग जाता है, जो बहरा है बोल नहीं सकता उसको श्रवण होने लगता है, जो लंगड़ा है वह बड़े से पड़वे पर्वतों को लांघ जाता है। ये केवल जय जय की कृपा से ही आज हम सब यहाँ ब्रजभूमि में, जो श्री राधा माधव की अत्यंत प्रिय स्थली है, ये ब्रजभूमि क्या है? ये ब्रजभूमि श्री राधा माधव, श्री युगल सरकार, श्री नाथ जी की परम प्रिय अपना हृदय स्वरूप ये ब्रजभूमि है। जिस ब्रजभूमि को कामना बड़े बड़े देवताओं ने की, पर उनको भी नहीं मिला। श्री लक्ष्मी जी आज भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रजरज प्राप्त हो जाए, परंतु आज भी उनको प्राप्त नहीं है। आज हम सबको श्री जय जय की कृपा से इस ब्रजभूमि में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, केवल ये जय जय की कृपा है। अगर कृपा नहीं है, हम सोचें कि हम तपस्या से ब्रजभूमि प्राप्त कर ले, जप कर ले, तो तपस्या जप आदि करने से, भजन करने से कोई ये ब्रजभूमि प्राप्त नहीं होती। ये कृपा साध्य भूमि है, ये केवल कृपा से ही प्राप्त होती है। एक बार श्री नारद जी महाराज के साथ प्रभु विचरण कर रहे थे, तो विचरण करते हुए क्या देखा नारद जी महाराज ने कि एक तपस्वी है, इतनी तपस्या कर रहा है, इतनी तपस्या कर रहा है कि उसके चारों तरफ हड्डियों के पहाड़ लगे हुए हैं। उसने इतनी तपस्या की, बार बार जन्म लेता, बार बार मरण, फिर जन्म, फिर मरण, पर उसकी जो तपस्या की जो कामना थी, वो कामना पूर्ण नहीं हो रही थी। समझो उसने कितनी तपस्या की होगी, उसकी हड्डियों के चारों तरफ पहाड़ लगे हुए थे, कितनी तपस्या की होगी। नारद जी ने पूछा, प्रभु आप इसको, जो इसकी कामना है, इसका जो मन इच्छा वर है, आप इनको क्यों नहीं देते? प्रभु ने कहा कि आप ही पूछ लीजिए इनकी क्या इच्छा है। नारद जी गए, तपस्वी आपकी ऐसी क्या इच्छा है जो आपकी पूर्ण नहीं हो रही है? ऐसी कौन सी इच्छा है? तो वे तपस्वी, वे महात्मा क्या बोलते हैं कि मेरी एक ही इच्छा है कि मुझे इस ब्रज भूमि में वृक्ष की योनि, जड़ की योनि,
पशु पक्षी कीट व्रंग कुछ भी बना दे। यही कामना श्री प्रभु से, श्री नाथ जी से कर रहा हूँ, परंतु ये कामना मेरी पूर्ण नहीं हो रही है। तो देखो, वह हजारों लाखों वर्ष तक जिसने तपस्या की है, उसकी ये तपस्या से ब्रजभूमि प्राप्त नहीं हुई। ये ब्रजभूमि क्या है? कृपा साध्य है। देखो, आप सब कहाँ कहाँ से आए हो, केवल जे की सानिध्य में आए हो, जे के चरणों में आए हो, और आज जे ने आपको कहाँ विराजमान कर रखा है? ब्रजभूमि में। ये जे की व्यापकम ब्रज उच्चते। ये ब्रज क्या है? 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों से परे है ये ब्रजभूमि। આપના સૌના આનંદ વચ્ચે જે રોજે રોજ આપણે વિવિધ વલ્લભ કુલના મહારાજશ્રીઓને પ્રવચન વચનામૃતની જે હારમાલા રાખી છે, અને એના જ એક ભાગરૂપે અને આપશ્રીએ જેમ જાહેર કર્યું હમણાં સિદ્ધાંત ભાવે કે આપશ્રીના પરિવાર જ એમના મામાશ્રી પ્રથમ ગૃહના પ્રથમ પેટ ગુસાઈજીના પ્રથમ પુત્ર શ્રી ગિરધરજીની પરંપરામાં પ્રથમેશજીના પૌત્ર પ્રથમ ગુરુ યુવરાજ શ્રી મિલનકુમારજી મહારાજશ્રી આપની વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે। તો આપશ્રીનું અહીંયા અમે સમસ્ત વૈષ્ણવ સૃષ્ટિ વતી આપશ્રીનું અભિવાદન કરીએ છીએ। સૌ પ્રથમ આપ માલ્યાજી અર્પણ કરીશું તો શ્રી મુકેશભાઈ મહેતા અમદાવાદ ના શ્રી કાંકરોલી મંદિરના ટ્રસ્ટીને વિનંતી કે પૂજ્ય સરકાર શ્રી ડૉક્ટર વાઘેશ કુમારજી મહારાજશ્રીને માલાજી અર્પણ કરે। ત્યારબાદ શ્રી સુનિલભાઈ કાપડિયા નીત સેવક જે ઔરંગાબાદથી અત્રે છે જે શ્રીની સેવા માત્ર ઉપસ્થિત છે, તો સુનિલભાઈ કાપડિયા આપના શ્રી મિલન મહારાજશ્રીને માલાજી અર્પણ કરશે। શ્રી વિજયભાઈ શાહ પેટલાદ સાત સ્વરૂપની હવેલીના કાર્યહર્તા શ્રી વિજયભાઈ શાહ શ્રી વેદાંત રાજાને માલાજી અર્પણ કરશે। અને શ્રી જયેશભાઈ શાહ જે શ્રીના નિજ સેવક જયેશભાઈ શાહ શ્રી સિદ્ધાંત રાજાને પણ માલાજી અર્પણ કરશે। વલ્લભાધીશ કી જય। મિલનમાં શ્રી માટે એટલું જ કહીએ કે દેશ વિદેશની અંદર ઘણા બધા ફોલોઅર છે, અને ખાસ કરીને વિદેશીઓ, નોટ એનઆરઆઈ પણ ફોરેનર્સ એમ આપશ્રીના ઘણા બધા અનુયાયીઓ છે, અને એમની વચ્ચે પુષ્ટિ પ્રસાર કરાવીને આખી પુષ્ટિ પંથની એક ધજા ત્યાં પણ લહેરાવી રહ્યા છે। એવા શ્રી મિલનબા શ્રી માટે એટલું જ કહીશ કે ના પૂછો कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो श्री मिलन कुमार जी महाराज श्री आप श्री ने वचनामृतनी एमनी वाणीनो लाभ आपसे। नमामि मथुराधिपम सकल वल्लवी वल्लभम विचित्रवनमालया लसितपीतपट्टाम्बरम किरीटमणिमेखला कटककुण्डलैर्मण्डितं समुल्लसितराधया नवनिकुञ्जतल्पे स्थितम्। अत्यंत हर्ष का विषय है कि मैं वेदांत बाबा सिद्धांत बाबा का मामा तो हूँ, पर इससे भी बड़ा संबंध श्री गुसाई जी से संबंध से इस घर का है। हम श्री गिरधर जी के घर के गृहाधीश्वर हैं और आप श्री बालकृष्ण लाल जी के घर के गृहाधीश्वर हैं, तो ये संबंध सबसे बड़ा है, क्योंकि मूल हम आज जो है श्री गुसाई जी के काल से ही वो परंपरा से चली आ रही पद्धति को ही मानते हैं, और वहीं पर ही अपने सेवा क्रम इत्यादि जो है श्री गुसाई जी द्वारा जो प्रतिपादित है और प्रणाली का परंपरा
इनका हर घर को, हमारे घर को और आपके घर को रक्षण करना ये सर्वप्रथम कर्तव्य है। आप सब व्रज यात्रा में हैं और व्रज का अर्थ यही है कि जो चलता फिरता गांव, तो ये जो व्रज के दर्शन हो रहे हैं, व्रज भक्तों के दर्शन हो रहे हैं, ये आप सबके अंदर ही हो रहे हैं, क्योंकि ये चलता फिरता गांव जो है वही व्रज है। और ऐसे ही ठाकुर जी भी इसी प्रकार ही आपका भी जो व्रज है वो चलता फिरता था। अब जो भक्ति जो भाव है और सेवा क्रिया है, हम सेवा की क्रिया तो करते रहते हैं, पर जब भाव है वो भाव को सम्मिलित न करें तो पूर्ण सेवा नहीं होती है। तो व्रज में आके आप पुनः आपकी लीला की स्थली के दर्शन करते हैं, आप आनंद लेते हैं। और जैसे श्रीमद् भागवत जी में आज्ञा करी है, हमारे श्री आचार्य चरण ने आज्ञा करी है, ऐसे लीलाओं के आपको दर्शन होते भी होंगे और हुए भी होंगे। और वो फिर दर्शन होने के बाद जब आप भगवत सेवा में आप आनंद लेते हैं, तब पूर्णानंद की प्राप्ति होती है। वस्तुतः यह देखा जाए तो व्रज ऐसी स्थली है जहाँ के रज में भी, कण कण में भी ठाकुर जी बसते हैं। इसी के लिए हम व्रज के रज भी चरणामृत के रूप में लेते हैं। और यहाँ ठाकुर जी ने साक्षात लीला करी है। हमारे श्री मथुराधीश प्रभु भी यही व्रज में प्रगटे हैं। कर्णावल में आप जब कराड़ा टूटा और 7 तार जितने लंबे आपका स्वरूप प्रगटा, तब पद्मनाभ दास जी ने श्री महाप्रभु जी से विनती करी कि आज के युग में इतने बड़े स्वरूप की सेवा कैसे हो सकती है। तब आपके विनती पे आप जब श्री महाप्रभु जी जो हैं श्री मथुराधीश के गोद में पधार गए और आज भी हमारे माथे विराज रहे हैं, तो मैं दादा से विनती भी करूंगा कि आप सबको जरूर कर्णावल भी ले जाएं और ऐसे अलौकिक स्थल जहाँ श्री महाप्रभु जी की बैठक भी है और आप प्रागट्य स्थल भी है, वहाँ दर्शन कराएं। और ये सब जो आनंद है जहाँ हम वार्ता में पढ़ते रहते हैं, वो स्थलों से आपको यहाँ भी वही आनंद लेना चाहिए, वो स्थलों के दर्शन करने चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्रिया ज़्यादा हो जाती है और क्रिया करते करते हम भूल जाते हैं कि भाव कहाँ लुप्त हो गया। तो आप जब सुबह से चलते होंगे तो ज़रूर परिश्रमित होते होंगे और अपनी कब मुकाम में पहुँचें और कब दूसरे दिन में चलें, पर ये सारे प्रसंग के बीच में हमें अपना भाव वृद्धि के लिए, अपनी खुद के भाव वृद्धि के लिए प्रसंगों को याद करते हुए स्थलों के दर्शन करने चाहिए। तभी ये लीला पूर्ण होगी। क्योंकि नाम, रूप और गुण ये तीनों मिला के स्वरूप बनते हैं। तो केवल नाम लेना, केवल रूप का गुणगान करना, तो ये सब भजन के अंदर आ जाता है। और भजन जरूर पात्रता बनाता है, पर जब स्वरूप जब क्रियान्वित होते हैं तभी वो लीला होती है। और जब वो लीला के जब हम कीर्तन गाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, जहाँ अष्टछाप ने साक्षात दर्शन किए थे, तभी हमारी जो है वो पूर्ण लीला संपूर्ण होती है और हमें पूर्णानंद का दान होता है। तो ये मैं आप सबसे पुनः यही कहूँगा कि जहाँ जहाँ जिस स्थल में जाएंगे ज़रूर आप उनका महात्म्य जानें, कीर्तन करें और उस स्थल में श्री ठाकुर जी के दर्शन करें। और ख़ास करके कर्णावल के भी दर्शन करें जहाँ श्री मथुराधीश प्रभु का प्रागट्य स्थल है। यही कहते हुए मैं अपने वचनामृत को विराम देता हूँ। इतिशा। बोलो वल्लभाधीश की जय। સરસ, આપના સૌના આનંદ વચ્ચે, હર્ષોલ્લાસ વચ્ચે પૂજ્ય સરકાર શ્રી પણ આપણને સૌને એમના વચનામૃતનો લાભ આપશે. વાગેશ બાવાજી. श्रीमता बालकृष्णेन स्वामिनी सहित सदा सेवितो द्वारिकानाथो मस्तके ममराजताम। उपस्थित परमादरणीय श्री मिलन बाबा श्री, चिरंजीव वेदांत बाबा श्री, सिद्धांत बाबा श्री, उपस्थित विद्वज्जन और भाविक वैष्णवजन, धीरे धीरे यात्रा सरक रही है। अब कहाँ सरकानी, इसका निर्णय आपको करना है। बरसाना और बरसाने से नंदगांव
धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ रही है, लेकिन उस यात्रा में कुछ प्रसंग बहुत ही सुंदर बने हैं। और उसमें आज का प्रसंग श्रीनाथ जी की जो पीठिका है, उस पीठिका के एक साइड में श्री द्वारकाधीश प्रभु विराजते हैं और दूसरी साइड में श्री मथुराधीश प्रभु विराजते हैं। तो ये जैसे बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आज से नहीं, गुसाई जी से, श्री महाप्रभु जी से, श्री गोपीनाथ जी से पूरी परंपरा चली आ रही है। और ये सारी परंपराएं अगर आप उसका इतिहास देखेंगे, कांकरोली का इतिहास तो कार्यालय में है अभी। आप इससे इन सब इतिहासों का अगर अध्ययन करेंगे तो आपको एक बात निश्चित लगेगी कि जब जब सप्त स्वरूप उत्सव हुए हैं, जब जब साथ विराजे हैं सातों स्वरूप, तब तब सभी स्वरूपों की जो प्रसन्नता है वो अपने आप में एक विशेष आनंद की अनुभूति कराती है। मुझे आनंद है कि हमारे ताज चरणों के समय में भी नाथद द्वारा में 2 दफे सप्त स्वरूप उत्सव हुए। आज के युग में बहुत मुश्किल काम है अब निधि स्वरूपों को यहां से वहां पधराना। ये आज के युग में बहुत मुश्किल काम है। फिर भी निश्चित रूप से ठाकुर जी की अगर इच्छा होती है तो उसे रोकने वाला ये दुनिया में कोई नहीं। तो आज मथुराधीश का चटनी का प्रसंग भी आपने श्रवण किया। जब आप कांकरोली पधारे और बड़ी प्रसन्नता से विराजे, और आपका जो नेक भोग है उसमें वो क्रम है मठा और चटनी का, तो जब मथुराधीश वहां से वापस पधारे हैं तो द्वारकाधीश प्रभु ने हमारे पूर्व पुरुषों को बताया कि मुझे 1 महीने से मठा और चटनी की आदत पड़ गई है, तो अब मुझे रोज चाहिएगा ये। तो आज भी राजभोग में मठा और चटनी अवश्य भोग में आ रहे हैं। तो हरेक घर की अपनी रीत अलग है, हरेक घर की अपनी प्रीत अलग है। रीत में तो प्रभु ने स्वयं आदेश किए हैं। अब हमारे यहां मंगल भोग में ठौर आते हैं, अब वो एक ठौर 1 इंच का एक होता है, इतना जाड़ा और इतना बड़ा। अब आप विचार करो कि बालक सुबह जल्दी जगे और इतना जाड़ा ठौर मुखारविंद में आप कैसे धरते होंगे। हमारे ताजियों ने पूछा ठाकुर जी से कि कृपानाथ, ये तो आपसे उठ तो भी नहीं होएगो, इतनो बड़ो ठौर है, तो आप ये आरोगेंगे कैसे। तो ठाकुर जी ये बहुत सुंदर आज्ञा की कि मुझे तो ये ही पसंद है। अबे जारे ठाकुर जी ने जो पसंद होए, जब प्रभु को ही पसंद हो तो आप और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आज ना आ दिवस से, आज के इस महत्व के दिन में मैं इतना ही कहूँगा, बाबा पधारे, हमारी पूरी परंपरा को बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आप यहाँ पधारे। बहुत बहुत प्रसंग जुड़े हुए हैं प्रथम पीठ से, अनेक विध प्रसंग जुड़े हुए हैं। पूज्य प्रथमेश जी महाराज जी ने गोस्वामी परिषद की मीटिंग चल रही थी और मैं पूज्य पितृचरण का बैग लेकर वहां बैठा था, सब कागजों के बैग लेकर मैं बैठा था।
अब उस मीटिंग में मेरा कोई अस्तित्व नहीं था उस समय, लेकिन प्रथमेश जी महाराज जी की नजर इतनी तगड़ी थी, उन्होंने मुझको बुलाया और कहा कि क्या कर रहे हो आजकल? मैं इनकी खा रहा हूं, पी रहा हूं और लहर कर रहा हूं। अब इतने बड़े आचार्य के सामने क्या जवाब देना, उस समय हमको ये भी होश नहीं था। ये मैंने उनको जवाब दिया, तो क्या आज से परिषद का काम भी संभालना है और घर के काम में भी ध्यान देना शुरू करो। और मुझे आनंद है कि हमारे पितृचरण ने उनकी बात को माना और धीरे धीरे व्यवस्था में, सेवा में, स्मरण में, चिंतन में आगे से आगे प्रवेश करवाना प्रारंभ किया। बहुत बहुत कहानियाँ, बहुत बहुत वार्तालाप, बहुत बहुत प्रसंग आपके परिवार से जुड़े हुए हैं। मैं आज वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ कि आप ब्रज यात्रा में पधारे और इतने वैष्णवों के संग साक्षात्कार किया। अभी एक बहन बात कर रहे थे कि पुष्टि मार्ग के सभी स्वरूप बहुत स्वरूपवान है। हालांकि उन्होंने मुझसे नहीं पूछा, दो बहन बातें कर रही थी, तो मुझे मन में विचार आया कि 3 कुल हैं, रघुकुल, यदुकुल और वल्लभ कुल। आप अगर प्रतिभा देखेंगे तो ये तीनों कुल में विद्यमान है। 1.25 लाख ग्रंथकार पुरुषोत्तम जी, अब आप विचार करिए कि एक जीवन में 1.25 लाख ग्रंथों का रचना करना, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात। और आज हम छाती ठोक के कह सकते हैं कि जितना साहित्य पुष्टि संप्रदाय के पास है, शायद इस जगत के किसी धर्म के पास इतना साहित्य नहीं होगा। लेकिन एक गड़बड़ बहुत बड़ी हो गई है कि केजी के स्टूडेंट के पास पीएचडी की पुस्तक पहुंच गई और पीएचडी के व्यक्ति के पास फर्स्ट ईयर की पुस्तक पहुंच गई। ये पुस्तकों ने बड़ी गड़बड़ की। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि सेवा कृतिर गुरुर आज्ञा है, ऐसे ही वांचन में भी अपने गुरु का मार्गदर्शन लेकर ही ग्रंथों का वांचन करें, जिससे कि इस युग में भी अपना जीवन सफल बने। मैं गूगल गुरु को मानता तो हूं, लेकिन थोड़े परसेंटेज कम देता हूं। आजकल व्हाट्सएप पर ऐसी ऐसी बातें आती हैं। थोड़े दिन पहले मैंने देखा था कि द्वारकाधीश प्रभु ने हमेशा हमेशा सफेद गुंजा जावे, द्वारकाधीश प्रभु ने चंदनना आभरण धरवामा आवे। अब चंदन के आभरण हमारे यहां श्रीनाथ जी की परंपरा में है। द्वारकाधीश प्रभु चंदन के आभरण कभी धरते नहीं। हाँ, कोई विशेष रूप से अगर मैं श्रृंगार कर रहा हूं और एक कंठी धरा दी तो चल सकता है, लेकिन रीत के प्रकार में चंदन की माला नहीं है। और गुंजा की श्वेत माला भी हमारे यहां समय समय पर आती है। ये प्रतिदिन का क्रम नहीं है। प्रतिदिन के क्रम में तो जो लाल माला है वही माला ठाकुर जी को धरानी चाहिए, तो ही श्रृंगार की पूर्णता संभव है। अब ऐसी अनेक विध बातें हैं कि जिन बातों को अगर करें तो बहुत कुछ समझने जानने को मिल सकता है। लेकिन आज श्री मिलन बाबा श्री पधारे हैं यहाँ, बहुत ही प्रसन्नता है। सभी वैष्णवों का दर्शन का लाभ मिला है और ठाकुर जी ने इतनी कृपा की है कि रोज कोई न कोई आचार्य श्री पधारते हैं और सभी वैष्णवों को लाभान्वित कर रहे हैं। ये मुझे लग रहा है कि महाप्रभु जी की विशेष कृपा का ही एक प्रतिफलन है। तो विशेष न कहते हुए प्रभु के चरणों में इतनी अभ्यर्थना करूं
वो भजन याद आ रहा है मुझे, बहुत प्रसिद्ध है। पच्छिन में मोर बनइयो तो कदमन में वास करियो। यहाँ कवि कह रहा है कि अगर जन्म पुनः देना हो तो ब्रज में ही वास कराना, और ब्रज में भी वास कराए तो कबूतर बना के कदम के वृक्ष के ऊपर बैठाना। तो नीचे ठाकुर जी और स्वामिनी जी अपनी लीला करें और मैं ऊपर से उस दर्शन का सौभाग्यशाली बनूं। ये कवि की भावना को देखते हुए मैं तो प्रभु से यही कहूँगा। आज एक वैष्णव आए मेरे पास और बोले कि આવતા વર્ષે પાછી યાત્રા છે। મેં કીધું આ યાત્રાને હજુ 14 દિવસ બાકી છે। इतना भाव का उद्दीपन हुआ है कि वो पुनः यात्रा कब है उसकी तारीख भी लेने के लिए आ गए। मुझे लग रहा है कि ऐसे वैष्णवों पर भगवत कृपा है। इतनी गर्मी, इतने कष्ट के पश्चात भी ब्रज यात्रा कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं और प्रभु की भक्ति में अपने चित्त की वृत्ति का निरोध कर रहे हैं। यही मुझे लग रहा है कि इस ब्रज यात्रा की सबसे बड़ी सफलता है। तो आप सब प्रभु के चरणों में हमेशा हमेशा रति मति और गति रखते रहें, यही अभ्यर्थना के साथ विराम लेता हूँ।